introduction about women empowerment. Women empowerment is basically encouraging and allowing women to give their opinions, thoughts, whether it could be society, home, office, work life, everywhere. So that's it. Next slide. ओके कोई भी हंसेगा उधर जाके करना पड़ेगा चलेगा So basically, women empowerment enhances the quality and quantity of human resources available for development. Women empowerment helps in boost women's status through literacy, education, training, and creating awareness. Okay. So these are the components of women empowerments, where we have to treat men and women equally. So there should be no biased thoughts. There should be right to access the opportunity and resources, the right to have the power to their control over their lives both within and outside the home. So this is the statistics of women in India. So in 2021, the literacy rate of female population was 68.5, and whereas between No, actually, I am correcting you. The total female population of India was 68.5 crores. And according to the National Family Health Survey, which was conducted in 2022-21, is 1020 female per 1,000 days. Okay. So in rural areas, the sex ratio is 1037, and in urban areas, it is 985 females to 1,000 males. This is the mortality. Maternal ratios between your male or female का कितना ratios था? Yes. Due to each girl child. Maternal mortality is per lakh, whereas 112 people per die. Actually, maternal mortality is that unit. In 1 lakh women, while giving birth, they lost their lives. Out of 1 lakh, 112 women lost their lives. So that's the maternal mortality. And the women in parliament, like every decision has to be made in the parliament, either in the lower house or the upper house. Lower house is the parliament and upper house is the Rajya Sabha, Lok Sabha and Rajya Sabha, where having almost equal 68.5 crores is not a less number at any point of time. Then इतना होने के बाद भी women in parliament is 14.5%. 14.5% is taking the decision of equal half the amount of population. Like women's के लिए क्या लेंगे वो? तो as it is, they are suppressed at the parliament also. You can continue. So women's over 25 age between 25 with secondary education is 41%. Women in labor force are 27%, and the gender inequality index. Value. Yeah, 0.490. Actually, general inequality index, वर्ल्ड बैंक हो गया, UN यूनाइटेड नेशंस हो गया, दे अरेंज ऑन दैट बेसिस इंडिया का रैंकिंग हुआ जाता है. तो इंडिया का रैंक जो है आउट ऑफ 191 कंट्रीज 122 है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है. उसके बेसिस में वुमेन का डेवलपमेंट कितना हुआ है सोसाइटी, और इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं कि एक वुमेन अगर डेवलप है तो एक सर्टेन पैरामीटर चेक्स रखते हैं. यूनाइटेड नेशंस हो गया और वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब डिसाइड करते हैं. तो वो बेसिस पे वो सब चेक होता है. तो दैट्स द स्टैटिस्टिक्स अपन या वो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी. आउट ऑफ 146 वी आर 135 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. हाँ, तो दैट्स द ग्राउंड रियलिटी. तो वही बता रहा हूँ. ओके, यू कैन गो अहेड. So these are the schemes launched by the Ministry of Women and Child Development. Yeah. The first one is Beti Bachao, Beti Padhao. Another is One Stop Center scheme, and the next one is Women Helpline scheme, Ujjwala scheme. Yeah, and many other schemes as follows. So I'll be discussing about the Beti Bachao and Beti Padhao scheme. It is nothing but the Save the Daughter, Educate the Daughter. So it is launched by the Prime Minister of India, PM Modi, and it was launched in 22nd January 2015. Its aim is to address the issue of declining child sex ratio, that is CSR,
and a national initiative joint, which is run by Ministry of Women and Child Development. It initially focuses on multi-sectors action in 100 districts. So the main objective is to prevent by sex selective elimination. So we have to reduce, we have to actually लाइक वॉर्म में अपन सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं वो eliminate the thought हाँ. of not गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए ऐसा girl हाँ child. देन गो ऑन And we after that's the one thing, and we should equally support them and protect. That's it. Yeah, you should give a big round of claps to Chitra. किया जाए उसके लिए ये फॉर्म किया गया है. अभी निर्भया फंड, अभी निर्भया का मतलब क्या है? मीनिंग फियरलेस. वो एक्चुअल लड़की का नाम छुपाने के लिए वो निर्भया लाया गया है. और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इनिशियली नॉन लैप्सेबल मींस एक एनुअल ईयर 22 to 23 वो साल में आपको 1000 करोड़ दिया गया तो उसे आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है. अगर आपने उसमें कुछ बचा लिया या 500 करोड़ यूज किया, उसके आगे यूज नहीं किया तो वो गवर्नमेंट वापस ले लेता है. ये इसलिए ऐसा किया कि इनिशियल डेज में जब गवर्नमेंट ने फंड लॉन्च किया, एवरी गवर्नमेंट वाज नॉट इनिशियली एक्टिवेटिंग द फंड्स. उनके हाथ में फंड रहता था, उन्होंने कुछ यूटिलाइज किया नहीं. तो गवर्नमेंट ने लाया कि अगर आप फंड देते हैं तो उसको यूटिलाइजेशन मिलो. एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आजकल हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीसीटीवीज है. देन मोर और मोर अभी नाइट पेट्रोलिंग के लिए निर्भया स्क्वाड घूमता है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर रिमेम्बरिंग की निर्भया स्क्वाड नाम का भी एक पुलिस अभी घूमता है. क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इज टेकन सीरियसली नाउअडेज. तो वो सब ये निर्भया के फंड के अंदर ही आता है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. नोडल एजेंसी लाइक हर गवर्नमेंट को फंड्स मांगने के लिए उनको पेपर में बताना पड़ता है हम ये करेंगे. अगर मेरे को ये मोबाइल मैन्युफैक्चर करना है तो इसके अंदर कितना रॉ मटेरियल लगेगा, क्या प्लान लगेगा, आई नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट. तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये अगर एक गवर्नमेंट चला रहा है तो बजट लगता है. बजट के बाद किसको कितना देना है सब एलोकेट होता है. तो इसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम ये काम करेंगे, ये अप्रूवल हमको लगता है इतना पैसा दे दो. तो वो ये नोडल एजेंसी ही, रेस्पेक्टिव एजेंसी ही इन्वॉल्व करेगा रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द फंड. अगर ये सब प्रॉपरली यूज हो रहा है या नहीं, यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, उसका इन लोग ध्यान रखते हैं. क्योंकि ये फंड 1000 करोड़ 200 अभी नॉर्मल इवन एक छोटा सा चॉकलेट हो गया या गवर्नमेंट जो भी फंड रिलीज करता है उसमें स्कैम्स हो जाता है. तो वो स्ट्रिक्टली ना हो उसके लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता है. ये देखो, अंडर द निर्भया स्कीम द सेंटर गिव्स मनी टू द स्टेट्स व्हिच इन टर्न स्पेंड इट ऑन प्रोग्राम्स मेंट फॉर इंश्योरिंग वुमेन्स सेफ्टी. लाइक सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हो गया. अभी वुमेन्स डे आ रहा है, हर कॉलेजेस में जाके देख लो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स होते ही रहेगा और सेफ गर्ल चाइल्ड का रैली निकलते रहेगा. वो तो बाय डिफॉल्ट होते ही रहेगा, बट वो सबको फंडिंग कहां से आएगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रहता है. लाइक वी आर कॉर्पोरेट्स, हम लोग एक अमाउंट डिसाइड करते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए देना है. बट आफ्टर ऑल दैट ये डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो भी सामने से बोलती है कि आप ये इनिशिएटिव्स लिया करो, अवेयरनेस क्रिएट करो. उसके लिए ये नॉन लैप्सेबल तो मैंने आपको बता दिया. ये देखो, फॉर एस्टैब्लिशिंग वन स्टॉप सेंटर्स मेकिंग सेफ्टी डिवाइसेस, setting up fast track courts and to procure forcening kits for sexual assault cases among others. अभी ऐसा कैसा हो गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जब निर्भया का केस हुआ था वो केस लंबा चला, बट उसके बाद गवर्नमेंट को अक्ल आया कि जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड. तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करो. बट वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी कितना इफेक्टिव है, 5 या 6 इयर्स लग जाता है. तो वो सबको ऑन ट्रैक लाने के लिए फंड्स का जरूरत था. तो वो एक निर्भया फंड वाज अ अवेयरनेस. हमने एक लड़की को खोया दिल्ली में, बट उसके आगे जो रिपरकशंस वर्ल्ड ने हम पे प्रेशर डाला, जो अपने पब्लिक ने प्रेशर डाला गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में थोड़ा अक्ल आया कि वुमेन सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज. ठीक है 1091 और ये ऐप्स है, ये ऐप्स इंस्टॉल कर लेना. और अगर ओला में ट्रैवल अलोन कर रहे हो तो एक वे रहता है. हाँ, तो मैंने मेरे बहन के मोबाइल में बाय डिफॉल्ट रखा है, वो कभी कोई ओला करती है मेरे को मैसेज पहला आता है. तो ये करके रखना, ठीक है. हाँ, hope you find this presentation helpful.